Hello friends, welcome to the new video for the week starting 10th of May. So as it is, how Nifty looks still in the sideways channel, making the flag pattern as I had suggested even in the last week. So as long as it does break out above this flag pattern high, then until or that is more or less equal to 15,000. 15,000 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक भागने वाला है नहीं निफ्टी. So that is what is happening in Nifty. Simple सी बात है कि अभी तो साइडवेज चल रहा है. मेनली there are three sectors which are outperforming. Number one is metal, number two is pharma, and number three is IT. Whereas banks and Reliance and NBFCs, all these are underperforming the market as of now. So only if we see a closing above 15,000, then we should be able to see a good amount of follow through buying action. Although the news is totally negative and very grim and morose kind of news flow that we have gotten used to all these days after the rising COVID cases and whatnot. But then market seems to have a mind of its own. Does not seem to care about what's happening. चलो ठीक है. Now let us rest assured. Let's just focus on the technicals part and see what the market is doing. So now let us go to Bank Nifty. More or less the same. कि consolidate कर रहा है भाई. And this also is forming a channel, but this is much more steeper than what Nifty was. So this is more or less a downward, बहुत ज़्यादा downward sloping है compared to Nifty. And then इसमें also you need a breakout about this trend line in order to give any sort of follow through. I think यहाँ पे एक resistance level बन रहा है. ये वाला 34,000 राउंड नंबर वाला एक 34,000 पे बन रहा है. फिर there's another one at 33,000 as well. 33 ये रहा. So these are acting like resistance as of now. देखो every time it's trying to go there, it's getting sold off. तो यहाँ पे भी उसने bullish कैंडल बनाने की कोशिश की. ये यहाँ पे फिर एक और बार. But then there's no follow through action. तो अभी बैंक निफ्टी में either अगर if it starts breaking below 32,500 ish, तो फिर ये वापस there's possibility that we could go back and test this level again, 30,800 वाला. Because यहाँ पे देखिए there's a lower top formed over here, another lower top formed over here. So now if there is follow through action, then gone. It's gonna go down much lower. See, this was higher high. All this while it was in higher high. Then there is lower high again, lower high again. So this has been happening since it's more or less consolidation, but then it's not a breakout unless it goes and crosses above this. Now let us look at the underperformance that Bank Nifty has been seeing with respect to Nifty. रेशियो चार्ट लगा के देखते हैं. तो ये अंडर परफॉर्मेंस तो मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीक भी in the same kind of fashion. So now I think this is the support line. अगर यहाँ पे आके टच करेगा तो there is some chances of bouncing back up. Weekly is still very dicey. I mean you can't really say कि ये और परफॉर्म करने वाला है मार्केट को, एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल एज वेल क्योंकि डिफॉल्ट सब बढ़ने वाले हैं हर जगह पे आफ्टर द न्यू कोविड वेव एंड losses in business, disruption in business, all these factors will start coming into play. ठीक है. So now Bank Nifty I think is clear. In Bank Nifty, one chart that looks interesting to me is this. Let us see SBI क्या करता है. So this is kind of outperforming the banking index. The candle structure है इसका, it is much better than what the rest of the banking pack is doing. तो ये भी वैसा ही है more or less. But then if you get a breakout about this 362, 363 के ऊपर आपको मिल जाता है breakout. See all these wicks over here.
यहाँ तक खींच सकता है. So this is your line of resistance for SBI. अगर ये क्लोज करता है about 362 in this week, then we could see a good amount of bounce in this stock, PSU sector, and also all the other PSU banks as well. जो Bank of Baroda हुआ, अपना Canara Bank हुआ. So this is rather the stronger index, in the stronger part of Bank Nifty is what I mean. Another strong chart in Bank Nifty is this ICICI. This also is quite strong in the banking index. If you just look at the ratio chart of this, then this happens to be the strongest. See, since the budget time, it has never given a breakdown. This is quite a strong. So if you this is the strongest component of bank Nifty. That's what I mean to say. चलो ये हो गया. Now let us get to some individual stocks. So Glenmark is continuing the strong momentum, very strong momentum. So weekly pay it has given another fresh breakout. As I said, pharma is going to do well irrespective of what the market does. So pharma is your safe haven and you can keep investing into pharma. So there's no doubt about it. This guy has given a fresh breakout above 570. And now if you look at the monthly candle, I think I have showed this to you in the last previous video as well. कि monthly candle के हिसाब से 700 जाने वाला है ये और चले जाएगा आराम से. Next stock we could see actually pharma खत्म करते हैं. Walk hard was the other one which I suggested कि इसका भी अच्छा बन रहा है पैटर्न. तो ये जो है वीकली कैंडल दे चुका है ब्रेकआउट अभी. तो ये अभी दे चुका है ब्रेकआउट अबाउट 570 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अबाउट आई थिंक दिसंबर में बनाया था इसने हाई. सो अबाउट 5 months, हाँ 4 to 5 months हो गए इसको. तो ये अभी it can be called as a range breakout where bottom of the range is this. नीचे जाके इसने स्प्रिंग दिया so it was not able to go below this. Then यहाँ के buyers आ गए and now it is poised to go much more higher. So इसका I think it should ideally head towards 800ish. Yes, 800 820 तक जाना चाहिए next target for Walkhart. Now let us look at the ITC of the pharma index. This is what I like to call this stock क्योंकि ये बहुत अंडर परफॉर्म करता है पूरे फार्मा इंडेक्स को. बाकी सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है या फिर 52 वीक हाई पे है सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स. एंड दिस वन इज अंडर परफॉर्मिंग अ लॉट. बायोकॉन तो ये अभी तक 52 वीक हाई को तो छुआ नहीं है एंड इट्स मच बिलो द मूविंग एवरेज एज वेल. जो 26 EMA मैंने लगा के रखे उसके भी नीचे है. So now, if the pharma rally continues, then there is a good chance that Biocon could play some catch up to the other pharma stocks. तो ये अगर यहाँ से निकल तो it's at a good place for entry is what I feel. तो अगर आप इसको डेली पे देखोगे, वीकली पे तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट था, very good support. If you go long over here, your stop loss is just about 10 rupees and your target is about 380 to 420. That's about 40 rupees. तो 1:4, 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा ये स्टॉक में. तो दिस इज अ गुड बेट फॉर द नेक्स्ट वीक कि इस पे खेल सकते हो. Right, this is what Biocon is doing on the daily chart as well. So I think it needs a closing above this 385 मान लो तो तभी ये निकल जाएगा मस्त वाला. Then we have Sun Pharma which also has given. ये अभी तो मतलब ये बहुत बड़ा लंबा कैंडल आ गया when Lupin gave a breakout after the news came with the RBI giving extra funds and whatever. So now weekly पे तो ये दे चुका है breakout, but then if it gives a retest towards 660 के आसपास retest देता है then that is a buying opportunity, very strong buying opportunity. तो उसको मिस मत करना अगर ये एड ऑन डिप्स है पूरे फार्मा का फार्मा सेक्टर पूरा. तो इसमें करते रहना ऐड आराम से.
फिर बायोकॉन दिखा दिया. नाउ रिलायंस इज स्टिल साइडवेज, नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच. वीकली पे देखोगे तो ये अभी भी साइडवेज है. अगर ये नीचे आके यहाँ से पलटता है, 1900 has become a very strong support now for Reliance. अगर ये यहाँ से निकलता है तो अच्छा है. रिलायंस दिस इज द ओनली वन हु हैज बीन लैगिंग द इंडेक्स सिंस so much time. तो अगर 15,000 के ऊपर निकलना है निफ्टी को तो ओनली मोटा भाई कैन डू इट. हाँ. Then we have auto sector also is at a kind of reversal kind of pattern तो दे रहा है. उसमें से मेरे को एक स्टॉक अच्छा लगा है एंड दैट इज M&M. M&M का वीकली चार्ट देखो कि ये यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ पे ये अच्छा रिवर्सल कैंडल है एंड इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन एज वेल. ये जो नीचे ऊपर से आ रहा है. So this is a favorable one in the auto sector to go long on ITC, I mean M&M. तो ये अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो ये दिखेगा कि ये 2000 ये रहा. सो फ्रॉम 15 से लेके यहाँ तक इट वाज विद इन दिस रेंज. तो ये तभी का लेवल है and this is usually a strong one. So 720 has become a very strong support for M&M. और ये पूरा sideways consolidation था. If it was falling very very rapidly then it was not consolidation phase. क्योंकि ये ऐसे आराम आराम से गिर रहा है so it is kind of a consolidation. And अगर it's basically a make or break situation for the auto index altogether. देखो निफ्टी ऑटो का बताता हूँ. So this has made a bullish candle weekly में. तो यहाँ से अगर इसको if it has to be some amount of short covering then we need a close above 10,000 basically. 10,000 के ऊपर दे देता है close then we could again head back to all time high in the CNX auto. Irrespective of all the planned shutdowns, bad news, जो भी है जितना भी bad news है, but the price seems to be suggesting something different is happening in the auto sector. मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो चार्ट बता रहा है वो करो, बस वही बोल सकता हूँ. ये एस्कॉर्ट्स का है. एस्कॉर्ट्स ऑल्सो इज लुकिंग लाइक अब्सॉर्ब हो गया सेलिंग. ये वैसे सपोर्ट था इसका 1100 के लेवल पे. तो वहां से ये पलटा तो है ना. दिस इज अ गुड फॉर्मेशन. तो यहाँ से एटलीस्ट टिल हियर यू शुड बी एबल टू गेट अ मूव 1 to 2 4. उसके बाद देखते हैं, वी कैन रिव्यू इट लेटर. फिर एक और स्टॉक मेरे को अच्छा लगा तो वो आईटीसी मैंने दिखा दिया था आपको लास्ट टाइम ही. तो दिस ऑल्सो हैज मेड क्वाइट अ गुड कैंडल वीकली में आईटीसी. तो अगर ये निकलता है यहाँ से देन आई कुड यू कुड सी अ टारगेट ऑफ अबाउट 220 to 225 के बीच में फॉर वीकली बेसिस. देन वी हैव भारती विच इज द बेस्ट स्टॉक ऑफ the most bullish candle I would say, at least above what the watch list is. तो ये यहाँ से बहुत अच्छा दे चुका है क्लोजिंग. इट हैज क्लोज्ड अबाउट दिस ऑन द वीकली एंड मंथली पे देखोगे देन इट हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउ ऑल द प्रीवियस क्लोजेस. तो ये अभी ब्रेकआउट लेवल तो हो गया. सी दिस वाज एन ओपन अबाउट दिस बट क्लोजिंग नहीं था. क्लोजिंग वाज बिलो दिस. दिस इज द हाईएस्ट मंथली क्लोज एंड मंथ हैज जस्ट 10 दिन हुए महीने को. तो ये यहाँ से निकल सकता है 600 तक तो आराम से निकल जाएगा. दिस इज वन स्टॉक वेयर यू शुड बी इन्वेस्टेड. सी अभी अपना इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि invest in businesses where you won't have much of a drawdown in case of any sort of disruption due to COVID second wave, third wave जो भी आने वाला है. तो disruption ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से. तो one to telecom is one place where you wouldn't have much disruption because that will come under essential services. एंड घर पे बैठे बैठे तो आपका डेटा कंजम्पशन भी ज़्यादा होते ही रहेगा. राइट. लॉजिकल है कि हमको यहाँ पे लगाना है पैसा टेलीकॉम में. एक और तो फार्मा बनता ही है. तो दैट वुड बी द आइडियल टू सेक्टर पोर्टफोलियो दैट आई वुड सजेस्ट कि तुमको अपना पैसा जो भी बाहर फाइनेंशियल्स में है उसको हटा के यहाँ पे लगा लगा लो. तो थोड़ा सा रीबैलेंस कर लो.
है ना। एक और है अपना चार्ट कोल इंडिया विच ऑल्सो हैज मेड अ क्वाइट अ बुलिश कैंडल इन फैक्ट ऑन द वीकली। देखो वीकली पे इट्स अ वेरी वेरी बुलिश कैंडल, ऑल्दो ऑन द डेली इट्स नॉट गिविंग सच मैसिव मूव, बट स्लोली स्लोली हर रोज हाफ हाफ रुपी वन वन रुपी कर करके ये भाग रहा है बस। Although it's not too visible because the moves are small, but then every day it's been going up in the past 1 week. तो ये इसका रेंज है कोल इंडिया का। अगर ये यहाँ से निकलता है यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए 150 तक। 150 इज डेफिनेट। उसके बाद वी कैन रीवैल्यूएट 150 तो फॉर श्योर जाएगा ये। देन है अपना टाटा मोटर्स। दिस ऑल्सो on the daily has given, so this was supposed to be a breakout candle. इसके ऊपर अगर निकलना है then it had to go up, but then this rejection supply आ गया इसको यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से वापस आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे जब आएगा तब बाय करेंगे इसको 294 295 पे। ये हो गया टाटा मोटर्स। फिर ऑलो फार्मा ऑल्सो इज एट ऑल टाइम हाई। दिस ऑल्सो इज एट ऑल टाइम हाई। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है अच्छा वाला। ये एक हुआ। देन बजाज फाइनेंस देखना है क्या? एंड देन हाँ, इफ एनीवन वांट्स any chart to be discussed, then please let me know in the comment section. I would we can take it up in the next video for sure. तो एक और हुआ अपना, चलो निफ्टी आईटी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, तो दिस हैज अगेन नेगेटेड द प्रीवियस कैंडल ऑन द मंथली। तो देखना बेकार है वैसे, बट वीकली पे रेजिस्टेंस पे आ गया है वैसे वापस। अगर ये इसको तोड़ के निकलता है ऊपर देन अगेन फ्रेश एटीएच बन सकता है निफ्टी इसमें ऑन द ऑल द आईटी स्टॉक्स। तो मेनली ये डेली पे देखो वापस पलट गया है। दिस वाज अ बुलिश कैंडल, अगेन यहाँ पे जैसे पॉज। तो नाउ फ्रेश बाइंग इज टू बी डन इन द आईटी ओनली अबाउट दिस रेड लाइन। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी वैसे ही रहेगा, टीसीएस इनफी पकड़ो जो भी हो। तो ओनली बियॉन्ड दिस इट्स गोना बी अ बाय निफ्टी आईटी में। देन DLF is one chart which is looking quite promising. तो ये अभी पिछले अप्रैल मिड से यहाँ तक पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ये बुलिश कैंडल बनाया और ऊपर गया है। तो दिस कैंडल वाज योर एंट्री सिग्नल। कि जब भी ये पिन बार बनाता है ना, पिन बार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल यूजुअली। पिन बार एट सपोर्ट। ये देखो ये पिन बार, इसका लो ये रहा। एंड देन नाउ इफ इट यहाँ पे आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इसमें सेल ऑफ आ गया था डीएलएफ में। इट कुड नॉट क्लोज अबाउट दिस। जब भी इसके ऊपर क्लोज देता है देन भागने वाला आइटम है ये। वीकली पे भी अच्छा खासा तो बना है, ठीक ठाक है। हाँ, बट देन दिस इज नॉट समथिंग वेर यू कुड पुट इन अ बिग पोजिशन साइज। स्मॉल पोजिशन साइज पे ठीक है खेल सकते हो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि उतना हैवी पोजिशन पे खेले इसको। थोड़ा लाइट शायद खेल सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव एस्कॉर्ट्स देख लिया। मेटल पैक तो चलता ही रहता है, तो इसमें तो देयर इज नथिंग टू बी डिस्कस्ड। ये दिस इज एट द लास्ट का जो फेस है ना डेली पे। सो इफ यू सी द कैंडल लेंथ इज इंक्रीजिंग। ये हुआ एक्चुअली द मोस्ट बेस्ट मेटल स्टॉक राइट नाउ इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या है, इसका अर्निंग्स भी आने वाला है। तो इसमें ये देखो, इट हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट नाउ फ्रॉम हियर। इतने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से अनदर 10 to 15% का मूव मिल सकता है इसमें, क्योंकि बाकी सब भी फ्रेश ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा भागे है। थिंग्स लाइक टाटा स्टील एंड JSW एंड ऑल। तो इसकी बारी अभी आ रही है कि ये भी जा सकता है ऊपर काफी अच्छे से। दिस इज वन। देन अनदर वन वाज नाल्को। तो ये दोनों अच्छे हैं। ठीक है। तो दीज टू आर माई पिक्स इन द मेटल पैक। कि इसने भी फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है, काफी अच्छा चार्ट है ये भी। ओके गाइस, थैंक यू very much. This is the end of the video. Bye, guys. Bye.